आई हैव कम अक्रॉस दिस पोस्ट। थोड़ा सब में मतलब चाहे जैसा भी मूड हो, बट वीडियोस मेरी ख़राब होनी ही है बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से। मतलब इट्स जस्ट अ थिंग नाउ आई थिंक। Hey guys, what's up? Welcome to Ashling Stories, the place where we sit together, vibe together and talk about things that can enhance our lifestyle. Now, आज का वीडियो ना मैं बहुत ऐसे easy peasy शूट कर रही हूँ. I haven't planned a lot about this. I also have my chai with me right here. बहुत अच्छा मौसम हो रखा है when I'm shooting this video. You can also grab a chai, grab a coffee, just set the whole mood and talk about things. सो वॉट रिसेंटली हैपन वॉज कि मैं अपने वीडियोज स्क्रोल थ्रू कर रही थी. आई केम अक्रॉस कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में बात की है द हैबिट्स दैट यू शुड बिल्ड, but sometimes it's more about undoing a lot of things rather than doing a lot of things. I think there are so many habits that we inherently follow that we shouldn't. It takes a lot of effort for us to undo a lot of things, but it is worth doing it. So in this video I would be talking about 5 habits that everyone should quit right away, and these are habits that I think most of us inherently follow. So let's just talk about them, and without any further delay, let's get started. The first habit that you should quit is leaving things to the last minute or waiting for an ideal time. Now I have been guilty of this. हमेशा ना मुझे ऐसे perfection का कीड़ा लगा रहता था कि यार मैं this video should be perfect, मैं this reel should be perfect, and उसके चक्कर में ना काफ़ी बार ना चीज़ें postpone हो जाती थी. कितनी सारी videos initially मैंने shoot करी जो मैंने कभी publish ही नहीं करी because I thought that this is not worth going on YouTube, this is not perfect, एंड उन सब से ना मेरा कुछ भी नहीं हुआ, बस मेरा दिमाग ख़राब हुआ और चीज़ें पोस्टपोन हुई, नथिंग एल्स. सो लिविंग थिंग्स टू द लास्ट मिनट, आई थिंक कि हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो ये सारी चीज़ें करते हैं एंड वी बिलीव इन परफेक्शन एंड समथिंग, बट परफेक्शन इज अ मिथ. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज परफेक्ट बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. इट्स ऑलवेज अबाउट लर्निंग एंड ग्रोइंग, यू नो. हमेशा मतलब कोई भी वीडियो एडिट करो, पुश करो, पब्लिश करो एंड देन improve in the next video, and that's how you can just build up from there. If you have heard about the concept that is eat that frog, so eat that frog is a book which says कि जो भी ऐसा टास्क है ना जो आपको बिल्कुल करने का मन नहीं है, which you are not looking forward to, उसको दिन में सबसे पहले करके ख़त्म करो. क्यों पूरा दिन उसके पीछे ख़राब करना है ना. You can just do it first thing in the morning and then just cross that off from your remaining day and just ease on to other tasks. So just don't leave things to the last minute. Don't just wait for an ideal time. Don't believe in perfection and just get things done. That's the basic thing that I want to say, that because इससे मैंने बहुत ज़्यादा struggle किया and I've seen a lot of people struggling with this habit. So try to quit this habit in this new year. So do that. In fact new year क्या यार, अब तो mid February का time आ गया है, but it's always better late than never, you know. Try and see अगर आप ये habit follow कर रहे हैं, then you might want to just cross that off from your life. Next habit that I have seen a lot of people inherently following is overcommitting. Now to be honest, मेरी खुद की ये बहुत गंदी आदत है that I overcommit to a lot of things. I have been trying to improve in this area, but I know that I haven't completely eliminated it. There is only 24 hours that you have in a day, and you should be very mindful as to how you are spending each minute of your day, and see that you are prioritizing yourself. See that you are being conscious of how you are spending your energy, because you have a limited amount of energy and you should be very conscious as to how you are spending your energy. And don't just say yes to everything, you know. Learn to say no. And there's a saying that until it's a hell yes, it's a no. मतलब एकदम वो hell yes वाली feeling आती है ना कि हाँ ये तो करना ही है, इसमें तो time देना ही है. So जब तक वो वाली feeling नहीं आ रही ना, then don't just waste your time. And the main reason that we overcommit now is because we think that the other person needs us more than we need ourselves. क्योंकि उसको हमें लगता है कि उसको हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, उसका ये टास्क कंप्लीट होना चाहिए. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यू आर इन योर ओन लाइफ. सो फोकस ऑन योर सेल्फ, डोंट ओवर कमिट. इट्स नॉट समथिंग कि कल से एकदम ओवर कमिटमेंट खत्म हो जाएगी. टाइम लगेगा. इनफैक्ट आई एम स्ट्रगलिंग विद दैट एज वेल. बी वेरी कॉन्शियस ऑफ योर ओन एनर्जी, बी वेरी कॉन्शियस ऑफ योर टाइम. मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं बोलती रह जाऊँगी, चाय मेरी ठंडी हो जाएगी. नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव टू टॉक अबाउट इज डोंट बी अराउंड पीपल दैट डोंट अप्रिशिएट यू. सो हम लोग का ना ऐसे, हम लोग का ना माइंडसेट थोड़ा होता है पीपल प्लीजिंग वाला. हम लोग को ऐसा लगता है कि वी डू थिंग्स इन ऑर्डर टू गेट अप्रिशिएटेड, वी डू थिंग्स दैट वी वांट अदर्स टू नोटिस. बट ये सब चीज़ों के बीच में ना वी काइंड ऑफ लेट गो ऑफ थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ टू बी सराउंडेड विथ गुड पीपल, दैट इज़ टू बी सराउंडेड विथ पीपल दैट अप्रिशिएट यू. एंड क्योंकि ना ऐसे होता है दैट देयर इज अ कॉमन सेइंग दैट यू आर average of 5 people that you spend your time with. If you're around people that don't appreciate you, जो हमेशा तुम्हें मतलब नीचा दिखाते रहते हैं, जो तुम्हें ग्रो करने नहीं देते, अगर तुम उनके साथ रहोगे ना यार, तो तुम्हारी खुद की ग्रोथ भी हैम्पर करेगी, प्लस तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा बिहेवियर वगैरह भी हैम्पर करेगा. सो चूज़ योर कंपनी वेरी वाइजली. तो कभी कभी ऐसा होता है ना यार दैट यू आउट ग्रो अ लॉट ऑफ पीपल. सो एक टाइम पे मे बी वो तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड था एंड एवरीथिंग,
एंड ओवर द ईयर्स यू माइट हैव आउटग्रोन दैट पर्सन, यू नो, उसकी ग्रोथ और तुम्हारी ग्रोथ अपोजिट थी मे बी, एंड यू आर जस्ट नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, यू हैव आउटग्रोन दैट पर्सन, एंड इट्स टोटली फाइन, इट्स टोटली नॉर्मल टू हैपन. सो जस्ट बिकॉज एक टाइम पे वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था, डजंट मीन दैट it has to be that way for the rest of your life as well. So you outgrow a lot of people, so be mindful of that as well. It's totally fine. Be surrounded with good amount of people and with good people. Amount का focus नहीं है, be surrounded with good people only. And दो तीन हो तो भी चलेगा, but focus on, when it comes to people, focus on quality rather than quantity. Next habit that I want to talk about is comparing yourself with others. Now to be honest, I have been guilty of this as well. मतलब ऐसा लग रहा है सारे bad habits ना मैंने अपनी life में कर ही लिए हैं, but I think you always learn from your own experience, you know. And the first thing that I learned about comparison with others is the main reason behind comparison is कि उस बंदे के पास कुछ है जो तुम्हें चाहिए and वो तुम्हारे पास नहीं है. You know what I'm saying? So basically जब भी आप compare करते हो ना, you are kind of thinking about a particular thing that that person has, but you actually want that thing to be there in your life as well. सो हमेशा ना वहीं से कंपैरिजन आता है, क्योंकि आपको लगता है यार उसके पास है मुझे भी चाहिए, उसके पास ये है मुझे भी चाहिए. सो वेन एवर यू फाइंड योर सेल्फ डूइंग दैट, कि आप कंपेयर कर रहे हो, देन सी what is the root cause, what is that thing that you actually want in your life as well, and how you can get that in your life. I'm not saying कि यार उसके पास गाड़ी है तो गाड़ी जाके चोरी कर लो, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको ट्रिगर करती है, जो आपको भी अपनी लाइफ में चाहिए. कभी ऐसा होता है कि यार सामने वाला बंदा हमेशा खुश रहता है, यार मैं इतना खुश क्यों नहीं रह सकती. सो इन दैट केसेस अगर ये कंपैरिजन का रीज़न है, इन दैट केस यू कैन ऑलवेज लुक फॉर थिंग्स दैट कैन मेक यू हैप्पी, यू नो. सो डोंट जस्ट कंपेयर इन द नेगेटिव सेंस कि एकदम हमेशा उसे नेगेटिवली लेने की जरूरत नहीं है. यू कैन ऑलवेज लाइक कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स इन ऑर्डर टू मेक positive changes in your life, but at the same time make sure that you are not like getting negatively impacted because of that. Make it a habit, make it a point कि जब भी आपको कभी किसी से ऐसे आप compare कर रहे हो, then try to find the root cause as to why you are comparing yourself with that person, and see if there's any changes that you can make, if there's anything that you can learn from that person and implement that in your own life. It will bring positive changes in your life. The next thing and the final thing is a habit that we actually follow a lot, that is binge scrolling, binge watching, or using screen before we go to bed. Now to be honest, like इस जनरेशन में आई थिंक जब से ये फ़ोन्स वगैरह इंट्रोड्यूस हुआ है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं. इनफैक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि मैं रात के 3-3 4-4 सुबह के 4-4 5 बजे तक मैं यूट्यूब चला रही हूँ, फ़ोन चला रही हूँ, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही हूँ. आई हैव दोज डेज अ लॉट, बट इट्स रियली नॉट नीडेड, यू नो. मतलब इससे ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है. नंबर 1, आपका स्लीप साइकिल बहुत गंदा डिस्टर्ब होता है इसकी वजह से. ट्रस्ट मी, मेरे बहुत बार गड़बड़ हुई है इस वजह से. नंबर 2, आपकी स्लीप क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है इन सब चीज़ों की वजह से. एंड यू डोंट नीड दैट इन योर लाइफ इफ़ यू नोटिस, यू नो. हमेशा ऐसे ये सारी चीज़ें ना डिस्ट्रैक्शन की तरह काम करते हैं. सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ऑलवेज शेड्यूल योर डिस्ट्रैक्शंस. इट विल हेल्प यू नॉट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड द नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आपको पता है कि यार 5 से 6 तो टाइम रखा ही है ना रील का, तब मैं रील्स देख लूँगी. सो you don't have to like mess up your entire schedule. You can just schedule your distractions as well. So it will help you, but make sure that you're not binge scrolling, because कहीं ना आपका माइंड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर जाता है. इनफैक्ट देयर वाज दिस पॉडकास्ट दैट आई वाज लिसनिंग टू, एंड रणवीर शो पे था. आई थिंक आई विल लिंक दैट पॉडकास्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो उसमें द पर्सन वाज सेइंग कि रील्स वगैरह की वजह से ना हम लोग का फोकस कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हार्डली जो रील्स होती है ना वो 15 सेकेंड से 30 सेकेंड्स के बीच की होती है. एंड कौन सी नेक्स्ट रील आने वाली है ना, यू नेवर नो. सो आप लोग 30 सेकेंड्स में ना बहुत जल्दी स्क्रॉल करते हो, एंड 30 सेकेंड्स में यू आर चेंजिंग द थिंग दैट यू आर thinking about, you know what I mean to say is कि 30 seconds maybe you were listening to a reel that was talking about health, maybe next 30 seconds में कुछ travel का आ गया, next 30 seconds में कुछ meme वगैरह आ गया. So you are noticing कि कितनी जल्दी आपका mind change कर जा रहा है. and इससे जब आप focus करने बैठते हो ना, कोई भी काम पे अगर आप focus करने बैठ रहे हो, तो आपके mind को आदत हो गया है वो 30 seconds में task change होने वाली, वो जो फोकस चेंज होने वाली. सो बार बार आपको ऐसे 30 सेकेंड्स में मन करेगा कि आपका माइंड डाइवर्ट होगा. हर 30 सेकेंड्स 1 मिनट में ना आपका माइंड कुछ ऐसी नई चीज़ ढूंढेगा, एंड दैट इम्पैक्ट्स योर फोकस इन अ रियली नेगेटिव वे. सो बी माइंडफुल एज टू हाउ यू आर यूजिंग योर फोन. बी वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट. एंड रात में प्लीज़ स्टॉप यूजिंग फोन, बिकॉज स्लीप क्वालिटी, स्लीप साइकिल सब कुछ खराब हो जाती है. वॉट यू कैन रेदर डू इज डू मेडिटेशन, डू रीडिंग,
or do journaling, do like just mild stretches. It will help your body relax. Just stay away from your screens. कभी कभी कर लो यार, कभी कभी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. इनफैक्ट मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ स्कूल के दोस्त हैं जिनसे मैं बहुत फ्रीक्वेंटली बात करती हूँ, एंड वंस अ वीक आई मेक श्योर दैट आई एम टॉकिंग टू दैम, एंड ऑब्वियसली फ़ोन पे बात कर रही हूँ तो स्क्रीन तो रहेगा ही. सो उस टाइम पे मैं कर लेती हूँ, एंड इट इज़ काइंड ऑफ अ एक्सेप्शन फॉर मी. मतलब मैं पूरे हफ्ते शेड्यूल फॉलो करने का ट्राई करती हूँ, एंड दैट डे जिस दिन सैटरडे नाइट या फ्राइडे नाइट होती है, व्हेन आई एम टॉकिंग टू दोज पीपल, एंड मुझे प्रॉब्लम नहीं है. इट इज़ काइंड ऑफ अ रिवॉर्ड फॉर मी फॉर फॉलोइंग थ्रू एवरीथिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज. सो आई डोंट माइंड डूइंग दैट फॉर दैट वन डे. बट अगर यही चीज़ आप रूटीनली करोगे ना, देन इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट यू इन योर नेगेटिव, इन अ नेगेटिव वे. So be very mindful of that. Don't like stop it altogether. Schedule your distractions and make sure that everything is happening for you rather than against you. These were the habits that I wanted to talk about. I'm almost done with my chai as well. So these were the habits that I actually wanted to talk about. I see that a lot of people follow through these habits inherently, like उन्हें पता भी नहीं है ये सारी चीज़ें वो कर रहे होते हैं, but over the time it really impacts you in the negative sense. So be mindful of these things and let me know in the comments below if there's any habit that you think that you are inherently following, because I know कि एक ना एक तो होगी ही होगी. So be mindful of that and let me know in the comments below as well. So that was it for this video. अगर मुझे कमेंट करके बताना ऐसे ये easy peasy सा वीडियो कैसा लगा. मतलब इनफैक्ट मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा इस टाइप से बस बैठ के ऐसे चिल करके बात करने में. Let me know in the comments below as well. And that's it for this video. I hope you liked it. If you did, then please like, share, subscribe to my YouTube channel. I post videos every Tuesday and Saturday, and I wish to see you guys in the next one. Bye.